Namaskar, good morning, Ram Ram. Welcome to your own channel AC Astro, and today we are here with a very important video that you await, every week. That is a weekly horoscope starting from 2nd of June, and how this will be for all 12 signs. Let's welcome Akash ji from Calgary, Canada. Namaskar, Ram Ram Akash. Namaskar, Ram Ram Rohit ji. Yes, today we are going to discuss about the week 22nd June to 8th June. Here we go. We will start with Aries ascendant and then we will go for all the ascendants. So this week, majorly Moon is making a transit and Moon will first enter into Aries on 3rd of June with Mars. So Mars is in Mool Trikon in very less degree, but Moon and Mars will make a conjunction of Mahalakshmi Yoga. That means there is going to be some positive news in terms of wealth that is coming for Aries ascendant people, and especially through the effort that they have put themselves. That means not because of their destiny or something, but because of their attitude and their self effort that they have put. Then Moon will enter into 5th of June. Moon will enter into Taurus into the second house. Now here there is a lot of planetary war that is going on. Five planets, almost see every planet other than Saturn and Mars is in the second house. That means lot of emphasis on your speech and on your wealth. This is where you have to be very careful not to see Jupiter. Venus is there in its own sign to make little bit of adjustment, little bit of give you a little bit of hope and little bit of security here. But still, Sun, Moon, this is the time of Amavasya as well. Amavasya will happen, so you have to be very careful. Moon enters into Kritika and there will be Amavasya, so you have to be very careful during this time, that not to make any kind of speech related statements. This is Yes, the Rohit? exaltation point of Moon Yeah, Moon, also. as soon as it enters into, it gets exalted. Yeah, but And exalted Moon and also getting into Amavasya, this is a challenge. and five planets together, if we just keep aside sun for some time, then Venus, Mercury, Jupiter, Moon, all very benefic planets, some planet. Yeah, Only Moon is like here, who is little bit cruel grah. Sun, Sun Sun, is a sun, poor there. Otherwise, everyone is benefic. So very. there is good chances of getting some monetary benefits, but on the other hand, there is chance of, because of Sun combusting everyone, it is a chance of harsh speech as well, which we have to be very careful. Then Moon enters into Gemini. Now Moon is exactly 12th from itself, from the fourth house it is 12th from itself. So this means some kind of expenses related to your house, your home, some kind of expenses or some kind of losses that you can expect for your vehicle or house, or anything related to emotional security, something in the family, some dispute. And communication wise, there will be a little bit of challenge that you may face. Now, uh, uh, what is supposed to be done during this time is lot of, see, according to your chart, the fifth house lord is Sun, and it is a very important. Fifth house is the house of mantra chanting, anything to do with any kind of mantras or invoking the deity. The fifth house is very important, where we will see that Surya Narayan, that means Lord Vishnu, is very important. So doing some kind of aradhana towards Vishnu, Krishna, Ram, anyone, any incarnation of Lord Vishnu is going to be more benefic for you. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक. अगर बात करें एरीज एसेंडेंट की, यानी एरीज मेष लग्न की, तो यहाँ पर मंगल देवता तो आपके लग्न में बैठे ही है, और इसी के साथ साथ अगर देखेंगे तो चंद्रदेव आपके लग्न में आएंगे और आकर बनाएंगे महालक्ष्मी योग. तो यानी आपके खुद के एफर्ट की वजह से, आपकी खुद की मेहनत की वजह से आप कुछ अच्छा, कोशिश होगा कि आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा. साथ साथ में अगर देखेंगे तो चंद्रदेव चले जाएंगे दूसरे घर में. जैसे रोहित जी ने कहा इंग्लिश वीडियो में कि यहाँ पर चार चार बेनिफिक, यानी शुक्र, बृहस्पति, बुध और चंद्र, ये चारों बेनिफिक है. यानी ये अगर देखेंगे तो पराशरा जी ने इन चारों को बेनिफिक कहा है, और सूर्य और मंगल और शनि, इनको क्रूर ग्रह कहा है. ये चारों एक साथ बैठकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स तो देंगे, लेकिन सूर्य देव यहाँ पर बहुत पावरफुल है. चंद्रदेव एक्सॉल्टेड यानी उच्च के होने के बावजूद भी अमावस का योग बनाएंगे. तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है अपनी स्पीच में और अपने फाइनेंस में, यानी किधर इन्वेस्ट करना पैसा, इसके पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए इस समय पे. क्योंकि ये वैसे तो चलो वीनस यानी शुक्रदेव आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचना है, और अपनी स्पीच पर, यानी अपनी बातों पर, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है इस समय पर.
आकाश जी, और अष्टम, क्या अष्टम घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस समय, क्योंकि सबकी सबके दृष्टि एक ही घर पे आ रही है, खतरनाक घर पे। सबकी दृष्टि अष्टम पे आ रही है और साथ में मंगल की भी आ रही है। ऐसा नहीं कि खाली उनकी अकेले की आ रही है। अच्छा वो तो छोड़ दो, शनि देव की भी आ रही है 10वीं शनि की भी दृष्टि। आ रही है, ओ माय गॉड। तो अष्टम ओह, के ऊपर तो इतनी दृष्टियां हैं कि अष्टम एकदम लग रहा है कि बहुत ज्यादा राहु केतु की ट्रांसफॉर्मेशन तो देखने दृष्टि होती नहीं, अदरवाइज सभी देख रहे हैं अष्टम को। को। हाँ, और ये एक समय होगा जहां पर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अकल्ट के अंदर, बहुत ज्यादा रिसर्च के अंदर, बहुत ज्यादा अननोन हिडन चीजों के अंदर आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस है। ये मैंने कहा था मार्स वाले वीडियो में भी कि मंगल देवता अष्टम में देखे तो ऐसे में सिद्धि करना, यानी अगर कभी कोई सिद्धि करना चाहे या कोई तरह का कोई मैनिफेस्ट करना चाहे तो ये सबसे बेस्ट टाइम, मतलब आप समझ लो जून 5 से 7 वन ऑफ द बेस्ट एवर टाइम्स है सिद्धि करने के लिए, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट योगा बन रहा है जो। सो ऑल द बेस्ट, भगवान करे आप सबका बहुत शुभ हो ये समय। और अच्छा हाँ, इसके बाद सॉरी ये तो मैं भूल ही गया कि चंद्रदेव तो तीसरे घर में भी जाएंगे। अब तीसरे घर में कम्युनिकेशन का घर हो गया, छोटी यात्राओं का घर हो गया, लेकिन चौथे घर का मालिक अपने से 12वां बैठ गया, यानी चंद्र अपने से 12वां बैठा, तो यहाँ पर आपको थोड़ी छोटी यात्राओं में तकलीफ हो सकती है और साथ साथ में घर के अंदर कुछ काम या अपनी वाहन के अंदर कुछ काम करके चक्कर में थोड़े पैसे भी खर्च हो सकते हैं। माता के लिए भी पैसे खर्च होने का समय ये समय दिखाता है। बट ओवरऑल ऐसे का तो भाई कुछ तो कोई तो कहीं कहीं से तो पैसा आएगा जो आपका खर्च होगा। सो ऑल द बेस्ट। टॉरस एसेंडेंट, अगर हम टॉरस की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके लगन के अंदर होने वाला है तांडव। और लेकिन इस समय पे जैसे ही 3 जून आएगी वैसे ही चंद्र और मंगल का युति बनेगा आपके 12th हाउस में, है ना। एंड I think I started with Hindi, but I would start with English. I forgot about it completely. So I will start with English, then I will go into Hindi. Now here we go is that when Moon will enter into Aries into the 12th house, it is the Lord of the third house into the 12th house. That means short distance journey or long distance journey for a very short period of time is possible during this time. So you will go abroad, but for a very little bit of time, or you will go somewhere. There will be some traveling that is coming, and it will bring you benefit also. Some kind of monetary benefits from this traveling can be seen. Then Moon enters into Taurus, where 5 planets, it's called Panchayat. When 5 people are together, it's called Panchayat Yoga. And all are aspecting the 7th house. In fact, Saturn is also aspecting the 7th house. So, very important time for anything related to personal growth, anything related to relationships, partnerships. You have to be very careful. See, end of the day, the problem is that Moon is putting a debilitated aspect. So your mind can go crazy and some kind of negative, you can take negative steps in terms of relationships. Saturn, Krur Drishti, the 10th Drishti here. That means in your partnerships, in business partnerships, you can create a little bit of rift here, which has to be avoided. But on the other hand, 4 benefic planets are sitting in the ascendant, so which will guide you in a very nice way. You may be able to make the right decisions. Only the problem here is to keep a lot of control over your emotions and attitude, not to come into ego. Whenever Sun is into first house, and it is backed up by so many benefits, here it is a possibility of getting a lot of arrogance and ego, which we have to avoid. Then Moon enters into the second house, and second house is the house of wealth. Now remember, it's also the house of speech. But if you see in a whole section, the third house lord is sitting exactly 12th from itself, which creates a little bit of problem in your speech, in your finances. This is the time to handle your finances very well, invest very well, or not to invest, just hold on, because this is the time of making losses through commitment, which should be avoided. On an overall level, very nice time for Taurus ascendant people, because your enthusiasm and your your what do you say, your self control, self drive will be at the peak. But on the other hand, you have to always, it comes with comes with ego and lot of rift. You may feel that some people did not do anything for you, but they did it with you with their pure intention, but you may come across that you did wrong, you did wrong. This is what you should be avoided, because second house is the house of status also, your self respect also. So self respect and self or maybe egoistic approach is two different things. So just make sure that you are into that small borderline. Otherwise, great time for all the Taurus ascendant people. Hope that this is a very very awesome week. बात करेंगे अगर हम वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन में 12वें घर में चले जाएंगे चंद्र और
मंगल के साथ युति बनाएंगे, चंद्र मंगल की जब भी युति होगी तो यहाँ पर आपको बेनिफिट यानी मॉनिटरी बेनिफिट देखने को मिलेगा। 12वां घर व्यय का घर यानी खर्चों का घर है फिर भी, लेकिन जब चंद्र मंगल एक साथ आएंगे और बनेंगे अपना क्या कहते हैं महालक्ष्मी योग, तो आपको देखने को मिलेगा कि छोटी यात्राओं से या लंबी यात्राओं से आकर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ साथ में अगर आप पैसा बनाएंगे तो आपको खर्चा भी होगा, तो अगर यात्रा में खर्चा होगा तो वहां से बेनिफिट भी होगा कोई ना कोई वे में। सो इट इज अ पॉजिटिव, कहते हैं ना, ये पॉजिटिव टाइप का कंजंक्शन है। फिर चंद्र आ जाएंगे आपके लगन में पंचायत योग बनाते हुए, पांच पांच प्लैनेट एक साथ, यहाँ पर 4 बेनिफिक 1 मैलिफिक, और चंद्र ऊपर से एग्जॉल्टेड और अमावस में भी, तो बाप रे, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। सबकी दृष्टि शनि देव को भी एक कर देखे तो 7वें घर पर आ रही है, और 7वां घर देखा जाएगा तो घर है आपके रिलेशनशिप का। स्पेशली बहुत केयरफुल रहना रिलेशनशिप एरिया में। देखिए, एक तो होती है सेल्फ ड्राइव की बात, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सब चीज से रिलेटेड, बट उसके साथ साथ आपको अपने रिलेशनशिप वाले एरिया में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज वीनस की भी सही दृष्टि नहीं है, कहते हैं चंद्र की भी सही दृष्टि नहीं है, सूर्य देव तो ऑटोमेटिकली क्रूर है, एंड मरकरी तो दो गुले है, जिसके साथ बैठ जाएंगे उसकी तरह बन जाएंगे। सो जो खराब है उसके साथ खराब, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा, तो इस तरह का उनका रिजल्ट आता है। सो आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप एरिया में। लेकिन इस समय पे सेल्फ ड्राइव बहुत अच्छा होगा। खाली बात यह है कि जब चंद्र वापस जमिनाई में चले जाएंगे, यानी चले जाएंगे आपके दूसरे घर में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ आपके स्पीच, आपकी कमिटमेंट से रिलेटेड कोई लॉसेस है ना। पीपल कमिट दैट आई विल गिव यू दिस एंड दैट, एंड यू विल नॉट एबल टू फुलफिल, आप नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से उसे। तो क्या होगा, आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे, और ये लॉसेस आपको थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा। इसलिए हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है, लेकिन हमें क्या बोलते हैं, एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखना है अपने स्पीच में, हमें बहुत शांति से। और इस समय पे इन्वेस्टमेंट के लिए तो हाँ करना ही नहीं है कहीं पे, हाँ बोले ठीक है, यहाँ करेंगे देखते हैं, है ना, हमें मून को निकलने देना है यहाँ से। बट अदरवाइज बहुत अच्छा टाइम है टॉरस एसेंडेंट के लिए। यहाँ पर ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये दोनों के बीच में एक थिन लाइन है, तो आपको वो लाइन पकड़ कर चलना है। ईगो में आपको ज्यादा नहीं बहना है। सेल्फ रिस्पेक्ट की गुड बात है, बट ईगो यानी मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, वो वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना है यहाँ पर, बिकॉज वहां पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का लॉर्ड अपने से बार बार बैठा है ना। सो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अदरवाइज ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे टॉरस एसेंडेंट को। मेरा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एसेंडेंट। भगवान करे आप सबको शांति सुख सब कुछ मिले। अपॉइंटमेंट लेना है तो नीचे सारा लिंक दिया गया, यू कैन टॉक टू मी। जेमिनाई एसेंडेंट, अगर हम जेमिनाई की व्हेन वी टॉक अबाउट जेमिनाई एसेंडेंट हियर, मून इज एंटरिंग इनटू एरीज and moon is entering into the 11th house, very important, the second house lord in the 11th house. There is monetary gain that is supposed to come to you through your social network, through your people in the surrounding, through someone that is either your colleague or either your friend or siblings, elder siblings. That is going to be some kind of positive news that you may hear during this time. Then moon is entering into the 12th house, a very important time for Gemini ascendant people to be very extremely careful, especially because all the planets are looking at the 6th house. Even Saturn is looking at the 6th house. This is the time that you may enter into some kind of legal trouble, dispute, problem, either through some kind of enemy or either through some kind of your own activity. Very good time for spirituality, very good time to attain a lot of higher spiritual status. But those people who are not into this path at the moment can expect some kind of health related issues, or uh, issues related to government, issues related to either some kind of law and order. So where you have to be extremely careful. Huh? It's kind of a planetary war. Moon is getting exalted here, but on the same time, Moon is also getting into Amavasya. That means Sun and Moon are together, so it will be new moon. Very, very careful. Then moon enters into the ascendant. Now the second house lord is into the first house. That means because of your own mistake you may lose some money. It is not a very positive week for Gemini ascendant people, especially because there may be trouble related to mother, health of some kind of how do I say, your own health. You will be feeling weak, lot of disturb, mental agony, stress, monetary some losses, because the second house lord has come to the the level. In the beginning of the week, yes, money is going to come. In the end of the week, you will spending too much money, which is what is seen in your chart. So just make sure that you have a balanced approach this week, and not try to do anything out of the
box or anything out of the way. Okay, that is where you have to be careful. All the best. अगर जेमिनाई की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत हफ्ते की बहुत अच्छी है ना। चंद्र मंगल योग, साथ में बोलेंगे कि महालक्ष्मी आएगी, 11वें घर में बैठा है, पैसे की बरसात होगी। तो ये पैसे की बरसात ये सब एस्ट्रोलॉजर बोल के बड़ा खुश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपके कोई गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स है, तो वो एक और स्टेप आगे चले जाएंगे आप उसको अचीव करने में। और साथ साथ में अगर मॉनिटरी कोई अभी पैसा ऐसा अटका हुआ है कि बस आने ही वाला था, आ नहीं रहा था, तो यहाँ पर एक ट्रिगर मिल जाएगा इसको, और पैसे आपके आ सकते हैं। क्योंकि ये 11वां घर गेन्स का घर है, यानी कोई ना कोई चीज मिलने का, एबंडेंस में, बड़े अमाउंट में आना। तो यहाँ पर एक आपको अच्छा न्यूज देखने को मिलेगा। साथ साथ में अगर देखेंगे तो मून टॉरस में चले जाएंगे बाद में। टॉरस में यानी वृषभ में पांच पांच ग्रह एक साथ बैठे हैं, है ना। 5 ग्रहों का एक साथ बैठने का मतलब ये है कि इसको बोलते हैं पंचायत योग, और सभी लोग छठवें घर को देख रहे हैं, और चंद्र तो नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड, अपने खाने से रिलेटेड, साथ में एनिमीज से रिलेटेड बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये समय खर्चे का समय है। या तो ये आपको हॉस्पिटल में खर्चा करा देंगे, या लॉ एंड ऑर्डर में खर्चा करा देंगे, या किसी एनिमी के साथ कुछ डिस्प्यूट वगैरह के अंदर, सेटलमेंट के अंदर खर्चा करा देंगे। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल, 5 से 7 जून तक तो कोई पंगे लेने ही नहीं है ना। जितनी हो सकता है शांति रखनी है। उसके बाद 7 जून को चंद्र चले जाएंगे। हाँ, एक दूसरी बात मैं कहना रह गया मुझे, कि जब चंद्र यहाँ पर रहेंगे आपके 12वें घर में, तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ले सकते हैं। इस समय पे आप आंख बंद करेंगे और ईश्वर के कदमों पे होंगे आप। कल मैं देख रहा था रोहित जी, एक चीज मुझे समझ में आया कि अगर हम बात करते हैं कि ईश्वर तो हर कण कण में मौजूद है, और अगर हम कहते हैं कि हम आत्मा है और परमात्मा है वो, है ना, तो परमात्मा और आत्मा में यही चीज सिमिलर है कि हम भी उनका ही अंश है ना, राइट। हम भगवान से ही आए हुए हैं यहाँ पर। सो है ना, कभी भगवान को ढूंढने हमें कहीं तीर्थों पे जाने की जरूरत भी नहीं है। हम तो आंख बंद करेंगे, अंदर हमारी आत्मा ही हमारी भगवान है एक्चुअली। जो बोलते हैं ना कि हर बंदे के अंदर विष्णु बसते हैं, तो बस वही विष्णु है, जो छोटी सी 2 ग्राम की आत्मा है हमारे अंदर। तो आई थिंक उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम अपने आप को तो पहचान ले, फिर जाके देखते हैं दूसरे लोग कैसे हैं। सो ये टाइम है गो डीप इनटू मेडिटेशन। पर एक्सपेंसेस और बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हेल्थ और, है ना, लीगल मैटर्स से। बाद में देखेंगे हम चंद्र चले जाएंगे लगन में, यानी दूसरे घर का मालिक अपने से 12वां आके बैठ गया, यानी आप थोड़ा पैसों का नुकसान कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी अपनी कोई गलती की वजह से। सो यहाँ पर पैसे निकालना ही मतलब, 5 तारीख के बाद तो पैसे का कोई बात ही ना करें, शांति रखें, नहीं है ही नहीं। इन्वेस्ट नहीं करना ही नहीं, घूमने नहीं जाना ही नहीं है, हर चीज में मना करे। आपको थोड़ा सा ये टाइम पे आइसोलेटेड रहने की जरूरत है। आइसोलेट रहकर बाद अपनी आंख बंद करके ईश्वर की आराधना करें। माँ लक्ष्मी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस कुंडली में देखेंगे तो, है ना। 5वें घर के मालिक शुक्र देव है, तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट। जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीक आप देख सके ये वीडियो, और अपॉइंटमेंट के लिए नीचे लिंक दिया गया है। अब बात करेंगे, लेट्स मूव ऑन टू कैंसर ascendant. And when we talk about Cancer ascendant here, Moon is the ruler of this ascendant, and going into the 10th house, that means boost in your career, and making a conjunction with Mars, that means awesome aggressiveness and, mental stability both in the career, which is going to lead to some kind of positive results, and especially gains, monetary gains, because whenever Moon and Mars are together, it is Mahalakshmi Yoga. Then Moon will enter into the 11th house, creating another yoga, which is called the yoga of, it's called the Panchayat Yoga, 5 planets together. This is the time that all the 5 planets will be aspecting the 5th house. Also, Saturn will be aspecting the 5th house. That means very careful in terms of children and love affairs. This is where there can be challenge. On the other hand, there can be massive gains that you are looking for, sudden gains from your career. This week is absolutely wonderful for you, like amazing for you. Like out of all the weeks, this time will never ever come. So make the maximum effort to go to the next, the heights. Now the Lagna Lord also enters into the 12th house. This means that very careful of expenses. So money is coming, professional growth is, now you will make sure that expenses also rise. But this is also the time of going into a lot of deep meditation, a lot of foreign travel, lot of humanitarian work, or going to some ashram, visiting some kind of pilgrimage. This is that time. So try to make this expenses into positive side, not into negative side. But on overall level, Cancer ascendant, one of the best ever times for you. Amazing.
अगर बात करेंगे कर्क लगन की, तो सबके पहले आपके 10वें घर में आएगा महालक्ष्मी योग, और ये है करियर का घर, यानी एग्रेसिवनेस और माइंड की स्टेबिलिटी दोनों एक साथ, चंद्र मंगल योग, इसे कहा जाता है महालक्ष्मी योग। और महालक्ष्मी योग केंद्र में बन रहा है, लग्न का स्वामी केंद्र में महालक्ष्मी योग बनाते हुए केंद्र के स्वामी के साथ, है ना, स्वग्रही मंगल देवता है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम देखने को मिलेगा। फिर ये खत्म नहीं होती है, यहाँ से मंगलदेव चले चंद्रदेव चले जाते हैं आपके 11वें घर में। 11वां घर गेन का, यहाँ पर एग्जॉल्टेड मून, साथ में चार चार बेनिफिक प्लैनेट, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए गेन्स का, अचानक से आपके बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, बड़े गेन्स मिलना, कोई तरह का बड़ा लाभ मिलना, साथ साथ में भाई बहनों से भी कोई लाभ मिलना, अपने कलीग से भी लाभ मिलना, फ्रेंड से भी लाभ मिलना, जितने भी सोशल आपके नेटवर्क है, सबसे लाभ मिलने का आपका समय है। तो आपको एक्शन भी उस डायरेक्शन में करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम बैठे अब लाभ आने वाला है, ऐसा नहीं होगा। आपको अभी वोकल होना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा और आगे जाकर आपको बढ़ना पड़ेगा। और साथ साथ में चंद्र चले जाएंगे आपके 12वें घर में। अब 12वां घर देखेंगे तो व्यय स्थान कहा जाता है, और लग्न लॉर्ड जब 12वें घर में जाता है तो ऐसे लोग आइदर फॉरेन ट्रैवल करते हैं, पिलग्रिमेज जाते हैं, यानी कोई तरह की तीर्थ जाते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, और वहां पर वो एक्सपेंसेस करते हैं। सो इस समय ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव थिंग ये है। लेकिन साथ साथ में एक और चीज ध्यान देना चाहिए कि 12वां घर हॉस्पिटल का भी घर है, तो इतनी एक्साइटमेंट में इतना पैसा आ रहा है तो शराब वराब पी के ये चक्कर में नहीं कि चलो हॉस्पिटल पहुंच गए। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस, और इस समय तो स्पिरिचुअलिटी का समय, ये समय तो आंख बंद करके अच्छे कर्म करने का, अच्छे विचारधारा करने का, डोनेशंस करने का, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में आगे जाने का, ये सब समय है। सो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे डिटेल्स दिए गए हैं, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बनाते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका भी लाभ हो हर हफ्ते। For Leo ascendant people, Moon is entering into Aries. So, Rohit ji, for me, this is exactly my birth position, Moon and Mars. This is where they are right now. So, This is exactly your birth position. And what do you feel that during the last few days you have sleepless nights because Rahu Moon together? I have sleepless Before night, this, anxiety, depression, yes, lot. Rahu Moon was together. Yeah, Rahu Moon was together. Then yesterday night also I could not sleep. Mars is in Gandanta point. Lot of sleepless nights, overworked, shortness of breath. Then anxiety for unknown reason. My health is okay, my blood pressure is okay, my heart rate is okay, cholesterol is okay, everything is okay. I don't know why. It is just because of this uncertainty of planets. Now, anyways, Moon will enter into the ninth house, and Mars is still there. Mars is there only. This is Mahalakshmi Yoga. Your destiny will be working for you. Some kind of instant destiny where you are trying to find something, some answers from your destiny. This is where you will find it. Very, very positive time for all the Leo ascendant people. For higher education, for travel, very nice time. So make the most of it. Then Moon enters into its exaltation into the 10th house. Again, this is leading to some kind of very positive news in terms of your career. So that means very benefic beginning of the week. Career, five planets in the 10th house, and especially the career lord also here. So it is fifth lord also here. Lot of dhan also here. So lot of money you can expect from your career, some promotion, some status, some power, some next leap that you are supposed to get, you will get it here. Very positive news. Then Moon is entering into the 11th house. Here the 12th house is into the 11th house. That means losses in foreign lands. If you're traveling somewhere, if you have traveled somewhere now, be very careful in terms of your health, in terms of your security. Some kind of enemy, some kind of theft can happen. Very simple. Phone lost, wallet lost, some kind of things like this can happen. So be very careful during this time, the end of the week, that is weekend we are careless, right? So you have to be careful during the weekend, but the whole week is so awesome. Wherever you put your hand, whatever you do, it is going to be an extreme benefit time for the Leo ascendant people. All the best. अगर हम बात करेंगे सिंह लगन की, तो सिंह लगन में 9वें घर में चंद्र मंगल का युति बनेगी, और इसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। और कहा जाए तो यहाँ पर विदेश जाने के लिए भी कुछ बहुत ज्यादा आपके रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि 12वें घर का मालिक 9वें घर में, और 9वें घर का मालिक 12वें घर पे दृष्टि डाल रहा है। देखिए ना, एकदम क्या कॉम्बिनेशन बन गया है। तो यहाँ पर आपको विदेश जाने के योग बन जाएंगे, कहीं कहीं भाग्य से पैसा, हायर एजुकेशन रिलेटेड अगर आप कुछ कोशिश कर रहे कहीं जाने की, तो ये भी आपका बन जाएगा। और धन के अंदर तो लाभ होना ही होना है। साथ में देखेंगे तो चंद्रदेव चले जाएंगे आपके 10वें घर में उच्च की स्थिति लेते हुए, लेकिन नीच की दृष्टि डालेंगे आपके 4थे घर पे, और सारे डाल रहे। तो वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत कहानी जब आती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि अपने परिवार के साथ, अपनी माता के साथ, अपने मदरलैंड के साथ कोई
कहते हैं ना कि पुराना कर्ज चुकाना पड़ेगा, कोई ना कोई पैसे वगैरह खर्च होंगे आपके इस समय पे, आपका वाहन से, भूमि से, घर के अंदर रिलेटेड कुछ चीजें आपकी एक्सपेंसेस आएगी, लेकिन उसी समय पर आपकी करियर के अंदर आपके पावर, आपके स्टेटस, आपके एटीट्यूड के अंदर बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि चंद्रदेव यहाँ पर उच्च के हैं। और देखेंगे तो चंद्रदेव यहाँ से आगे चढ़ते हुए चले जाएंगे 11वें घर में। 12वें घर का मालिक अपने से 12वां 11वें घर में बैठा है, यानी इस समय पे आपको बहुत केयरफुल रहना है अपनी लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली केयरलेसनेस। 11वां घर कहा जाता है छोटी छोटी मिस्टेक्स का, 6th हाउस कहा जाता है बड़ी मिस्टेक्स का। 6 से 6 11वां घर है, छोटी मिस्टेक्स, छोटी बीमारियां। यहाँ पर ध्यान देना है कि मेंटली आप बहुत ज्यादा है ना, पहले अगर सब अच्छा चल रहा है तो आदमी केयरलेस हो जाता है, अरे सब तो अच्छा चल रहा है क्या हो जाएगा, लेकिन तभी ही हो जाती है कोई कांड, तो लॉस होने के चांसेस है। और स्पेशली अपने वॉलेट, अपने मोबाइल, ये सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, ये समय आ सकता है कि आपका पैसा गुम गया। एक और चीज, साइबर क्राइम, है ना, 11वां घर सोशल मीडिया का भी घर है, 12वें घर का मालिक अपने से 11वां बैठा है, तो साइबर क्राइम यानी कोई आपको लिंक भेज दे कि आपके पैसे आ गए, डिपॉजिट कर दो, निकाल दो, ये चीजों से, फ्रॉड से आपको इस समय पर बचना है, बहुत ज्यादा बचना है। बट अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय, पूरा वीक इतना जबरदस्त है कि मजा आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने घर परिवार के अंदर रखना चाहिए, अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लियो एसेंडेंट को। एंड हम अगली बार जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप इसे मिस ना करें। Moving on to Virgo ascendant people. When we talk about Virgo ascendant, Moon is in Aries now, in the 8th house. Now, the 11th house Lord in the 8th house, which is with Mars, that means some kind of hidden wealth that you are expecting, because both are aspecting the second house, Rohitji. And 8th house is the house of shared resources, some kind of shared resources, some kind of hidden wealth is seen for all the Virgo ascendant people. So, all the best, man. Some positive thing is coming. Remember that you're receiving the aspect of Saturn here, which is not going to make a big difference, because very soon Saturn is going to get retrograde, है ना? So Mars here is not currently working at full potential, but it will work at the end of the month. So all the best. Then Moon enters into Taurus, into exalted state. Now here, Moon is getting, the 11th house Lord is getting exalted in the second house. That means lot of destiny is supposed to rise from your social network, from your, from your mentors. There is going to be some kind of positive news that will come, or maybe from long distance journey. This is also the time that Virgo ascendant people may be booking the tickets for going to some pilgrimage, so some religious travel, or some higher education, maybe taking some admission in some kind of college or school. So good time for you. Now, remember, all the 5 planets are, and also Saturn is aspecting the 3rd house of communication. So where you have to be careful, communication, because so many mixed approach, planetary wars. I don't like you, or you don't like me, this, that, what not. Everyone is looking at the 3rd house. 3rd house is very important during this time. Saturn aspecting the 3rd house, 10th aspect. That means very careful in communication, very careful in written commitments, contract signing, है ना, extremely careful. Take professional advice according to your chart, that if you're doing something very significantly big, है ना, take very career advice, that okay, should I go ahead, not go ahead, what should not, with any astrologer or any kind of mentor, any kind of person who is more learned than you. Okay, try to do that. Then Moon enters into Gemini, into the 10th house. Here, when we see Moon in Gemini, it is the 11th house Lord sitting exactly. Now, see that communication thing which was saying is leading to, some kind of problem in your career area, because the 11th house, the goals that you were supposed to complete will not be exactly at the par, and you may be a victim in your office, like, or in your workplace, or in your business, that I couldn't do this, or you couldn't do this. This is what statement you will hear. This is a very important time also to make sure that socially don't try to defame anyone, because you can get defame yourself. So careful time, careful consideration, positive time in the beginning of the week, and little bit careful towards end of the week, like after Friday, after drinking, sitting with friends, don't try to gossip around for your office and stuff like that, because that will come against you. Okay, all the best. अगर हम बात करेंगे वर्गों की, तो यहाँ पर अष्टम के अंदर चंद्र मंगल योग बनेगा, और अष्टम घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है, यहाँ ससुराल से बेनिफिट होने का घर। ये कहा जाता है कि यहाँ पर आपको अचानक से धन मिल जाना, लॉटरी लग जाना, ये सब चीजों का घर माना जाता है। और यहाँ
चंद्र और मंगल दोनों साथ में, तो इसका मतलब यहाँ पर बन गया आपके लिए महालक्ष्मी योग। तो कोई ना कोई तरीके से आपको पैसा आने की, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, कोई ना कोई चीज से अगर पैसा आपका अटका हुआ है तो यहाँ पर आपका आगे बढ़ जाएगा। साथ में चंद्र उसके बाद चले जाएंगे दूसरे घर में और हो जाएंगे एग्जॉल्टेड, यानी उच्च की स्थिति ले लेंगे। और उच्च के चंद्र तो वन ऑफ द बेस्ट चंद्र माने जाते हैं। लेकिन साथ में इसी समय पे चंद्र के पर ग्रहण भी लग रहा है, इसे कहा जाता है अमावस्या। अमावस्या का योग होगा, तो आप अपने डेस्टिनी पर ज्यादा भरोसा करने से ज्यादा अपने हार्डवर्क पर भरोसा करें, क्योंकि सारे प्लैनेट तीसरे घर को देख रहे हैं, आपके हार्डवर्क वाले घर को, आपके कम्युनिकेशन वाले घर को। और इस समय पर आपके कम्युनिकेशन और हार्डवर्क नंबर वन होना चाहिए। शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि वहां पर है, यानी सबसे ज्यादा आपको फोकस अपने कम्युनिकेशन पे करना है। भाग्य आपके साथ होगा। लेकिन इसी साथ साथ वर्गो एसेंडेंट कहीं ना कहीं जा रहे होंगे तीर्थ यात्रा पे, कोई ना कोई तरह की मंदिर मस्जिद, कोई ना कोई तरह की काबा की बहुत ज्यादा उनके दर्शन करने जा रहे होंगे इस समय पे। तो बहुत बहुत अच्छा समय देखेंगे हम वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए। लेकिन उसके बाद चंद्र चले जाएंगे आपके 10वें घर में। अब 10वां घर हो गया करियर का घर, है ना। और 12वें घर का और 11वें घर का मालिक अपने से 12वां आके बैठ गया, तो इसका मतलब करियर में लॉस होने के चांसेस है। और वो कैसे होंगे? स्पेशली बिकॉज आपके कम्युनिकेशन, आपकी माइंड, यानी आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से। और ये कहाँ हो रहा है? वीकेंड की तरफ हो रहा है। तो यानी आप ये कोई पार्टी शार्टी में जाएंगे और वहां पर कोई पंगा ना ले ले, जिसकी वजह से आपका सोशल नेटवर्क या आपका फ्रेंड सर्कल या आपके कलीग्स आपके लॉसेस का कारण बने। तो इस समय पे शांत रहना सबसे ज्यादा अच्छा काम होगा 7 जून के बाद। उसके पहले तो पूरी झंडे गाड़ दो, बोले बहुत जबरदस्त टाइम है आप सबका। ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर वर्गो एसेंडेंट। आप जरूर क्या कहते हैं, इस समय पे आपको लाभ तो होने ही वाला है, पैसों का भी और सम काइंड ऑफ भाग्य का भी। सो दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है और जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगले हफ्ते जब हम वापस हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो लेके आए तो आप इसका भरपूर आनंद उठा सकेंगे। ऑल द बेस्ट। लीब्रा, अगर हम बात करेंगे तुला लगन की, इफ यू टॉक अबाउट लीब्रा एसेंडेंट, सॉरी, when we talk about Libra ascendant, June 3rd is when Moon will enter into Aries, into the 7th house. 7th house is the house related to your relationship, partnership, and this is the combination which gives a good. This is a combination which gives a very good news for partnerships. Anything to get from partnerships, from your business partnership, from your husband and wife kind of partnerships. So here, this is Mahalakshmi Yoga. Many people will benefit from partnership during this time, and that can be even partnering with a client to go somewhere or to do some kind of business. So very nice time for all the Libra ascendant people. Monetary benefits is for sure coming to you from your business. Later on, your 8th house will be absolutely crowded. There are 5 planets in the 8th house. So 8th house is the house of sudden ups and downs, intimate relationships, also the house of your in-laws, also the house of sudden gains, lottery, also the house of shared resources. Now that Mahalakshmi Yoga that was happening in the 7th house through partnership, this is the time to gain from them, because Moon is becoming exalted here. Venus is sitting here, sudden gains. So it's like one of that time, that 5th June to 7th June, just use your luck everywhere possible. Now, only thing is that everyone is aspecting, including Saturn, everyone is aspecting the 2nd house, which is the house of finances. This is the time you should be on the receiving end, not should be on the giving end. So no investments should be done during this time. Only let it come. Don't put it. This is required. Also, on your speech, be very careful. Don't try to, in the heat of the moment or in the happiness moment, you don't try to commit that, okay, I will do this and that and whatnot. No, just be quiet. Whatever commitment you want to do, commit inside yourself. Don't speak it. Don't speak it out, because your 2nd house is afflicted because of Moon's debilitated aspect. So emotionally, you can make some kind of wrong decisions, which should be avoided. Then Moon enters into Gemini, the 10th house lord in the 12th house. Now, this is where you may do some mistake in your career area, and which may bring you loss in your career. And this is the weekend. That means this is the time of relaxation. But what you will do, you will attend some party, you will go somewhere, you will share your trade secrets. Very careful not to get into such kind of situation at all. Be very relaxed, nice. This is the time when Moon enters into the 9th house. Go to some mandir. Don't go to some party. Go to some mandir. Go to some mosque. Go to some church. Have a blissful weekend and just be quiet. No gossip related to your work area. No talking on the phone. Someone can use this against you. You can get losses in the career area. Very careful. Okay. Now, अगर हम लीब्रा यानी तुला लगन की बात करें, तो यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है आपके 7वें घर में। और 7वां घर हो गया आपके पार्टनरशिप, स्पाउस,
का घर, यहाँ पर आपको पार्टनरशिप्स के थ्रू बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे, और ये फायदे आपको एविडेंट रहेंगे क्योंकि ये आगे भी बढ़ते जा रहा है। अगर चंद्र अष्टम में चले जाके उच्च के हो गए तो सातवें घर से एक घर आगे चले गए अष्टम में चंद्र, और यहाँ पर आठवां घर जो कहते हैं ये शेयर्ड रिसोर्सेज, यानी मिल बांट के खाने वाला घर कहा जाता है इसे। ये लॉन्जिविटी, यानी आपको इस समय पे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है जो लंबे समय से चल रही है, यहाँ पर आपको उसमें रिलीफ भी मिलने के चांसेस है। साथ साथ में अगर एनलॉज यानी आपके ससुराल पक्ष से अगर आपको कोई लाभ मिलना या कोई लाभ देख रहे तो वहां भी देखेंगे, पार्टनरशिप से कोई लाभ देख रहे वहां भी देखेंगे, और सडनली कुछ पैसा, सडनली कोई धन आपके पास आने के चांसेस बन जाएंगे। साथ साथ में देखेंगे हम तो चंद्रदेव यहां से आगे चले जाएंगे अपने नौवें घर में, और नौवें घर में चंद्रदेव जब जाए, अच्छा इसके पहले एक चीज मैं बता दूं कि ये पांचों प्लैनेट दूसरे घर में देख रहे हो, और अकेले पांचों प्लैनेट नहीं, शनिदेव भी देख रहे हैं दूसरे घर में, और दूसरा घर क्या हो गया, स्पीच का। यहाँ पर चंद्र की कौन सी दृष्टि आ रही है, नीच की दृष्टि, है ना। बृहस्पति अगर यहाँ ना हो ना तो ये सबकी हो जाए काम, लेकिन बृहस्पति बचा रहे हैं आप सबको, क्योंकि उनकी दृष्टि सबका सबका मतलब दोष खत्म कर देती है। लेकिन फिर भी हमें बहुत केयरफुल रहना अपने स्पीच और कमिटमेंट से रिलेटेड, हम कोई भी चीज ऐसे कमिट ना करें जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो जाए आगे। तो इस समय पे ना बोलना सीखो या चुप रहना सीखो, वो इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर और एक चीज अभी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने से बार बार आके 9वें घर में बैठ गया, तो जॉब लॉसेस, बिजनेस में लॉसेस का टाइम होता है। और ये कैसे होता है, कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि चंद्रदेव का जो दृष्टि है वो तीसरे घर में जा रहा है और वो कम्युनिकेशन में कोई ना कोई इशू करता है। तो अपने चुपचाप शांति से इस समय, ये समय जो है रियल में आपको मंदिर जाने का, आपको मंदिर में सेवा करने का, आपको किसी तरह की अच्छे काम करने का, पढ़ाई करने का, कोई बुक उठाने का ये समय है, गॉसिप करने का समय नहीं है। सो बहुत ज्यादा ध्यान दे, कोई चुगली बुगली ना करे, और अपनी अपने काम से अपना काम रखे इस समय पर, ये आपके लिए बेटर रहेगा। बिगिनिंग यानी शुरुआत हफ्ते की बहुत अच्छी है, एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा चैलेंज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे आप। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रह सके, और बहुत 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 शुभकामनाएं आपको ये हफ्ते के लिए। For Scorpio ascendant people, when we talk about Scorpio, here Moon and Mars will be in the sixth house. That means specially focusing on your workplace. This is a Mahalakshmi Yoga. That means a good time for creating wealth, and especially through your workplace, and getting, it may sound very different, but getting some kind of benefit, monetary benefits from your enemies is seen during this time. So make the most of it. Now, remembering that this house is also the house of health. Mars is a crude, that means an aggressive planet. So you have to be very careful in terms of, the stress that you take. You cannot be overstressed during this time. Try to be calm. Try to have a lot of other different meditative or yoga kind of practices, which will be helping you the most. Then moving forward, here there is going to be 5 planets together sitting in the seventh house. And the seventh house is where there is going to be absolute blessing that you can see, because Moon is getting exalted, lot of benefits from your partnerships, from relationships, from business partnerships, from new contract signing. Some people will be proposing to get married, and so many good things are happening for all the Scorpio ascendant people. But because all the planets are aspecting the ascendant, so here we have to be very careful, and Moon is aspecting this place, so you have to be very careful in how your approach is towards, the attitude that you have. Sometimes when things are going very nice for us, we try to become a little bit of aggressive and a little bit of egoistic, which should be avoided. Then later, Moon is entering into Gemini, into the Ashtam, the ninth house lord in the 12th house. That means some kind of losses through journeys. Health of father should be taken into utmost consideration, and also education wise, if you're giving some exam and stuff like that, be very careful. You have to be very, very focused during this time, or you are getting some results, you may feel a little bit of challenge during this time. So unfortunately, the ninth house lord is sitting 12th from itself. This is also the house of transformation, so you may realize something, some kind of hidden things also will come out in front of you. So try to be very calm and relaxed, and be very, very much in what is the ninth house. Ninth house of dharma, meditation, of connecting with the spiritual life of yours, or getting spiritual knowledge. And eighth house is the house of transformation and doing a lot of research. So this is the time, better take a book up and start reading, start learning something. This is important for all the Scorpio ascendant people. All the best.
अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो सारे शुरुआत ही हफ्ते की सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र मंगल योग बनेगा आपके छठवें घर पे, वर्क प्लेस पे। कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर एनिमीज के थ्रू आपको प्रॉफिट मिलने वाला है इस समय पे। आपको अगर आप लोन के लिए, पैसे के लिए, डेट चुकाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी। साथ साथ में चंद्रदेव चले जाएंगे आपके सातवें घर में, और सातवां घर हो गया पार्टनरशिप का, यहाँ पर उच्च की स्थिति में रहेंगे, और तीन अलग प्लैनेट्स जो बहुत बेनिफिक है उनके साथ रहेंगे, यानी सारे सौम्य ग्रहों के साथ। एक ही चंद्र यहाँ पर क्रूर ग्रह है जो अपना काम कर देंगे, वो कर देंगे कि चंद्रदेव को अमावस में डाल देंगे, है ना, ये होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ रिलेशनशिप्स में, पार्टनरशिप्स में, लव अफेयर्स में, कहते हैं ना कि अगर आप मैरिज के लिए कुछ साइन करना चाहते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, या कहीं आपको प्रमोशन वगैरह की कोई बात ड्यू है, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने से 10वां बैठा, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन उसके बाद चंद्र चले जाएंगे अष्टम में। अष्टम में थोड़ा सा सावधान रहना है हमें, स्पेशली हमें एनलॉस के थ्रू, है ना। वीकेंड है, वीकेंड में हम जाएंगे एनलॉस के पास, वीकेंड में हम अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके सीक्रेट्स आपकी अगेंस्ट यूज करके आपकी किस्मत में बाधा डाल सकते, क्योंकि किस्मत का प्लैनेट यानी भाग्यस्थान का मैट अपने से 12वां आके अष्टम में बैठ गया, तो यहां पर लॉसेस कर सकता है। फादर की हेल्थ में भी थोड़े से इश्यूज आने के चांसेस बन सकते हैं। सो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केयरफुल रहने की जरूरत है। एंड ऑफ द, यानी वीकेंड में शराब पीकर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, सिंपल, है ना। अदरवाइज उसके पहले एंजॉय करो अपनी लाइफ, और बहुत बहुत अच्छा समय पूरा वीकेंड में बहुत शांति। मैं तो बताता हूँ सबसे बेस्ट है, 9वें घर का मालिक अपने से 12वां आ गया, तो चुपचाप या तो कोई यात्रा पे चले जाओ, जो लोग नजदीक कोई वीकेंड में भगवान की यात्रा पे जा सकते वहां चले जाओ, या दूसरी बात है कि अपना बुक उठाओ और कोई नई पढ़ाई शुरू करो। ये सबसे अच्छा टाइम होगा आपके लिए। ऑल द बेस्ट। जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे, और हम आपके लिए हर वीक ये वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू। For Sagittarius ascendant people, Moon is entering into Aries, into the fifth house. Now, Moon here is the Lord of the eighth house, going to the fifth house. Whenever fifth house and eighth house will have any kind of combination, this is the time of lottery. This is the time of some kind of monetary benefits. Here, there is going to be a chance, because there are two combinations here. First, Moon and Mars are making Mahalakshmi Yoga in the fifth house of Mahalakshmi. Very big thing for you guys. In the fifth house of Mahalakshmi, in the fifth house of wealth, it is making the Mahalakshmi Yoga. And Mars is also aspecting the 8th house. So there is a very big combination to kind of see. Lottery is not always, you buy a lottery ticket and you get lottery. Lottery is something that's sudden, unexpected, speculative gain. Very good time for share market. Very good time for speculation. Very good time for speculative gains. So make the most of it. Then Moon enters into Taurus. This is the time that 5 planets are sitting in the 8th house or 6th house. Sorry. 5 planets are sitting in the 6th house, and here this is the house of workplace, debt, loan, anything to do with enemies. Enemies will not be able to dare to come against you, because here Sun is also sitting. It will burn them off. But on the other hand, very careful in terms of health, especially in your stomach area. There can be some kind of planetary war is happening in your stomach. So whatever you put inside can create some kind of problem for you. So try to put a lot of sattvic food for you. On the other hand, those who are going through court cases, debts, big debts, they will find a solution that how they need to pay the debts, and try to find very much positive, what you say, positive way out of enmity also. So good time for you. Workplace, you will be shining at the workplace. Amazing time for you in the workplace also. Very nice. Then Moon enters into Gemini. The 8th house lord is sitting 12th from itself. So losses through in-laws, some kind of monetary benefit for the in-laws will happen through you. That means you will have to spending in relationship also, in partnership also. Be very careful before signing anything, before making any commitment, before writing anything and giving it to someone, trying to being a guarantor for other people, trying to be a give bail to other people from jail. So everything should be avoided. Don't put your signature anywhere. This should be avoided during this time, and especially this is the weekend when where friends will meet and say, okay, you know what, I'm going through this problem, can you give me a guarantee note so that I was taking this loan and stuff like that. No, say no, I am already defaulter, I cannot give anything, otherwise you will come into trouble. Beginning of the week awesome, end of the week little bit of challenge, so it is better to avoid any conflict in relationships, especially with your spouse also. Okay, so be careful. अगर हम बात करेंगे धनु लगन की, तो धनु लगन के 5वें घर में बन रहा है महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी का घर, महालक्ष्मी त्रिकोण, और वहीं पर बन रहा है महालक्ष्मी योग चंद्र मंगल। और जब मंगल स्वग्रही होके चंद्र उसके पास आ जाता तो लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बरसती बरसती है। यहाँ पर देखेंगे तो
मंगल देव की दृष्टि, चौथी दृष्टि 8वें घर पर भी है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चंद्र और मंगल एक साथ अगर 5वें घर में बैठ गए और 8वें घर से कोई रिलेशनशिप बन गया जो चंद्र का ही घर है, तो आप समझ लीजिए आपकी स्पेक्युलेटिव गेन्स, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट, लॉटरी, ऐसी सब चीजें निकलने के बहुत अच्छे चांसेस है। सो इस कोई कोई डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, यानी हर पत्थर को उठा के देखे उसके नीचे हीरा पड़ा है, ये समय है वो वाला। बच्चों से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और साथ साथ में एजुकेशन वाइज भी आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। ये चले गए छठवें घर ऑफ कंपटीशन में चंद्रदेव, और उच्च के हो गए, यानी कंपटीशन के रिजल्ट्स अगर कोई चाहते हैं तो बहुत अच्छे मिलेंगे। एनिमी कोई ट्रबल कर रहा है, उनकी वाट लग जाएगी। वो कहते हैं मुन्ना भाई में बोलते हैं ना कि तुम्हारी तो वाट लग गई है मामू, बस वो हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो 5-5 ग्रह एक साथ बैठकर, उसमें भी सब चारों ग्रह बहुत पॉजिटिव है ना? शुक्र, बृहस्पति, बुध देव, चंद्रदेव, चारों पॉजिटिव ग्रह है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इस समय पे किसी तरह की एनिमी से छुटकारा मिल जाएगा। जो आपके एनिमी बन गए, जो आपके दुश्मन है, उनसे छुटकारा मिलेगा। जो लोन लेना चाहते हैं उनका लोन अप्रूव हो जाएगा, और जो डेट में है बहुत ज्यादा, उनको कोई रास्ता मिलेगा जिससे वो अपना डेट खत्म कर सके। सो बहुत शुभ समय। आगे देखेंगे, चंद्र चले जाएंगे आपके 7वें घर में, और 7वां घर अगर देखेंगे तो 7वां घर है आपके स्पेशली रिलेशनशिप का घर, पार्टनरशिप का घर। ये कहा जाता है कि जो लीगल सिग्नेचर हम करते हैं ना, वो घर 7वां घर है। इसलिए कितने लोगों को कहा जाता है 7वें घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लीगली मैरिज ना करिए, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह लीजिए। लेकिन इस तरह से हमारे इंडियन समाज में चलता नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई चीजें हैं जिसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस है, उसको अवॉइड करेंगे। हम साथ साथ में अगर हमें कोई एग्जैक्ट साइन करने के लिए कहता है, बोलता है कि अरे मैं ना लोन ले रहा हूँ, जरा साइन कर दो, नहीं। मेरे को कोई, मेरा दोस्त कोर्ट में पुलिस में चला गया, उसको बेल दिलाना है, मैं साइन करता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह के कोई काम नहीं करने। साथ साथ में हमें कोई भी पार्टनरशिप डील नहीं करनी। एनलॉस के थ्रू हमें लॉसेस हो सकते हैं, यानी एनलॉस के ऊपर हमारे पैसे लग सकते हैं इस समय पे। और स्पाउस के साथ अनबन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी आपके बेटर हाफ, यानी आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके डिस्प्यूट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इस समय पे आपको एब्सोल्यूट ध्यान रखना चाहिए अपने सारी इन सारी चीजों का। आपका बिगिनिंग ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, एंड ऑफ द वीक आप बस शांत रहिए, शांत रहिए, बैठ जाइए, ये वाला आपको अपनाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें ताकि हर वीक हम इस तरह के इंग्लिश और हिंदी वीडियो दोनों साथ में बनाते हैं, तो आपको भी इसका लाभ होगा। केप्रिकॉन, अगर हम बात करेंगे केप्रिकॉन एसेंडेंट की, तो चंद्रदेव, ओह सॉरी, आई हैव टू से इन इंग्लिश फर्स्ट देन हिंदी। रोहित जी, यू हैव टू टेल मी ऑल दिस। Yeah. Okay. So on June 3rd, Moon is entering into Aries. Now here, Moon is in the 4th house with Mars, and this is Kendra, Kendra Lord in the Kendra. This is a Raj Yoga, and on top of that, it is Mahalakshmi Yoga. That means some kind of benefit you will receive from your family, from your own self, from your own hard work, from your real estate, from your those who are into working in real estate. Very good. Those who are trying to acquire vehicles, very good, very nice, amazing time for you. Very, very positive time in terms of monetary benefits from your family, from your house, from somewhere. Yeah, something very, very positive is coming to you. Then Moon is entering into Taurus, into the 5th house. Now this is a very important sign. 5th house is the house of love, romance, creativity, happiness, unconditional love, children, so many things. Moon getting exalted here gives you that indication that lot of beautiful things are supposed to happen in the relationship area. If with your children, speculative gains, Capricorn ascendant will get some very awesome speculative gain during this time. Especially the 8th house lord is also in the 5th house, so this means that there is going to be some hidden gains. So invest into stock markets or mutual funds and stuff like that, but be very careful, take expert advice. I am saying that this is the right time to make some kind of monetary benefits through that time. Then later, Moon will enter into Gemini, into the 6th house. Very careful for health. This is the time that health will trigger. This weekend, whatever you have so much happiness, money, so you will spend it, you will eat out and stuff like that. This can cause food poisoning and stuff like that. So here, you have to be careful not to be making too much hard on yourself in terms of health, in terms of daily routine. Also workplace, while there can be some disturbances in your relationship, also there can be some kind of disturbances because the 7th house lord is sitting exactly 12th from itself. Some kind of separation, fight, some kind of enmity between your spouses or your business partners can be seen during this time. So hopefully
You try, and maybe God will help you during this time in the end of the week. But in the beginning of the week, awesome time for you. All the best. अगर बात करेंगे केप्रिकॉन यानी मकर लगन की, है ना, तो मकर लगन मगरमच्छ हमारे इस बार बड़ा निवाला खाएंगे, क्योंकि इनके चौथे घर में चंद्र मंगल योग बन रहा है, जिससे इनको बहुत ज्यादा मॉनिटरी बेनिफिट्स होने वाले हैं, स्पेशली घर से रिलेटेड। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अगर आप गाड़ियों का काम करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई भी मंगल से रिलेटेड आईटी का बिजनेस करते हैं, आईटी में जॉब करते हैं, तो इस समय पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चंद्र और मंगल दोनों महालक्ष्मी योग बनाते हैं, और केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है, तो ये तो बहुत अच्छा। वीक का शुरुआत बहुत जबरदस्त धमाकेदार है एकदम। उसके बाद भी कम नहीं होता है, 5 से 7 तारीख तक चंद्र चले जाएंगे आपके चौथे घर में, पांचवें घर में, और पांचवें घर में उच्च के हो जाएंगे, यानी लव अफेयर में, यानी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बच्चों से प्यार, और ये घर स्पेक्युलेटिव गेन्स का है, यानी शेयर मार्केट का घर, ये घर है अचानक से पैसा आने का घर। और देखिए ना, 8वें घर का मालिक भी यहाँ पर बैठा है, सूर्य देव, तो यहाँ पर अचानक से पैसे आने के बहुत ज्यादा अच्छे चांस बन रहे हैं। तो इस समय पे एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर आप जरूर शेयर मार्केट या कोई लॉटरी शॉटरी जो भी आपके इसमें लीगल है, जहां पर आप स्पेक्युलेटिव गेन्स कर सकते हो, उसमें ट्राई करें, आपको बहुत बेनिफिट होने के चांसेस है। साथ साथ में अगर देखेंगे तो चंद्र अब चले जाएंगे आपके छठवें घर में। छठवां घर हो गया रोग ऋण शत्रु, और यहाँ पर रोग ऋण शत्रु का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि रोग स्पेशली खाने वाला रोग होने के चांसेस है, क्योंकि चंद्रदेव आपके इस बार स्टमक को थोड़ा सा अपसेट करेंगे। आपके पास पैसा आ गया, आपका सुख सुख चल रहा है, आप बोलोगे चलो रेस्टोरेंट में खाने, वहां खाओगे, फिर बोलोगे अरे यार पेट खराब हो गया, अब क्या करें। यहाँ पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल वगैरह विजिट करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। साथ साथ में बिकॉज 7वें घर का मालिक अपने से 12वें बैठे हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर भी लॉसेस होने के चांसेस है, जिसके लिए आपको बहुत अटमोस्ट ध्यान रखने की जरूरत है। पर अदरवाइज वीक का बिगिनिंग बहुत अच्छा है, आपको बहुत लाभ होने वाला है। भगवान करे कि आपको इस समय पे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले। रोहित जी, आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रोहित जी? आप पे तो आपकी तो लगन है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मेरे से हर लगन के विषय में पूछते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है बोलने पर। जब मकर लगन आता है मैं म्यूट हो जाता हूँ, क्योंकि अपने ही लगन पे कुछ भी बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। पर हाँ, ये एक ट्रांजिट बड़ा ध्यान रखने वाला है, जो आपने ये मिथुन लगन वाला मिथुन राशि वाला बताया, जिसमें चंद्रमा उसमें जा रहा है, क्योंकि ये 7th हाउस का लॉर्ड भी है और अपने से 12वें जा रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पार्टनरशिप इश्यूज और वाइफ के साथ थोड़ा शांति से रहे तो अच्छा है। शांति से रहे, और इस समय पे कोई साइन सिग्नेचर ना करे, कोई लोन ना ले, लोन लोन ना, अप्लाई ना करे, कोई डेट के चक्कर, कोई एनिमीज के साथ अननेसेसरी इमोशनल लड़ाई ना करे, या अपने क्योंकि यहाँ से छठे का मालिक भी अपने से 12वें चल रहा है। 7वें का भी अपने से, छठे का भी अपने से 12वें चल रहा राइट, तो हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। है। अदरवाइज एंड बिगिनिंग ऑफ द वीक तो मजे है रोहित जी आपके, आप गाड़ी लोगे, घर में से पैसा कमाओगे, शेयर मार्केट से पैसा, रोहित जी क्या क्या होगा आपके साथ, मजा आ गया। जो होगा आपकी कृपा से होगा। हाँ, मेरी कृपा से कुछ नहीं होता, मेरी कृपा से मेरी खुद भी चल जाए। फिलहाल तो मैं 2-4 दिन से एंग्जाइटी में हूँ। ऑल द बेस्ट। Aquarius. For Aquarius ascendant people, Moon is entering into Aries, into the third house of your hard work, dedication, and communication. This is the time that through your communication, you can expect some kind of monetary benefits, because whenever Mars and Moon are together, it is the time of Mahalakshmi Yoga. Benefit through siblings, through your small social network, or through your neighbors is possible during this time. Then, Moon entering into the fourth house, and here become exalted. Very, very powerful Moon, man, exalted. And with exalted Moon, it is also making Gaj Kesri Yoga. It is also making Amavasya Yoga. So it is so many yogs this season I can't even explain. Now what happens is here when Moon is in the fourth house, and especially the sixth house Lord in the fourth house, so a lot of gains you get from enemies, lot of gains you get from your family, lot of gains in terms of real estate, lot of gains in terms of vehicles, or maybe by selling them, or maybe by acquiring them, lot of profit you are into. Business wise, awesome time for you. So when Moon is exalted, think things are very, very awesome. So all the best. Then Moon enters into Gemini, into the fifth house. Here we have to be very careful in terms of relationships, love life, and enemies, because the enemy lord is sitting exactly 12th from itself. Stomach related, Aquarius ascendant, end of the week when June 7th happened. Remember, you will write down that, last week you said stomach related problem will come, and we had food poisoning, we had bloating of stomach, we had shortness of breath, we have this, we have acid reflux. This is very common for all the people who are having this kind of combination. Remember, what is happening here is that
When moon is here, it is also the time that there may be some kind of emotional ups and downs in your relationships, in your love life, where you have to be extremely cautious and try to do as much as Ganesh Vandana, like Lord Ganesha, Om Gan Ganpate Nama, maximum, because this will help you mitigate this difficult weekend in simple way. Otherwise, very good time, awesome time in terms of the whole week is very good. Weekend is where you have to be very careful for your health and for sudden some kind of emotional outburst on your loved ones or children. Okay, careful. अगर हम बात करेंगे कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन वालों के लिए चंद्रदेव इस समय पर आपके 11वें घर के अंदर बैठ गए, और 11वां घर अगर हम सॉरी 11वां घर कहां बोल रहा हूं मैं, चंद्रदेव आपके तीसरे घर में बैठ गए। और तीसरे घर के अगर हम देखेंगे तो आपके चंद्र मंगल योग बनेगा, जिसे कहा जाता है महालक्ष्मी योग। और महालक्ष्मी योग अगर देखेंगे तो इस समय पर तीसरे घर के कम्युनिकेशन, यानी आपको कोई आपकी बातचीत से, कोई कॉन्ट्रैक्ट से, कोई छोटी यात्राओं से आपको बहुत फायदा होने वाला है इस समय पे। तो हर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है तो उसे स्वीकार करें। साथ साथ में चंद्रदेव आपके आगे भी चले जाके उच्च के हो जाएंगे, लेकिन अमावस में भी रहेंगे और साथ में गज केसरी योग में भी रहेंगे। सो चंद्रदेव काफी चीजों से जा रहे हैं, तो बहुत मिक्स रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो लोग वाहन भूमि का काम करते हैं उनके लिए बहुत फायदा, जो लोग बिजनेस में है बहुत फायदा, जो लोग अपने जन्मभूमि पे बिजनेस करते हैं या जन्मभूमि में कुछ नया एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग विदेश में रहकर फॉरेन में अपने देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो बहुत लाभ वाला समय है आपके इमोशनल फाउंडेशन के लिए, आपके इनर पीस के लिए, आपकी अंदर आत्मा बहुत खुश होगी इस समय पर। यहाँ पर चंद्रदेव फिर चले जाएंगे आपके छठवें घर में, और छठवां घर अगर हम देखेंगे, अब सॉरी पांचवा घर, क्या हो गया मुझे आज एक्चुअली इंग्लिश हिंदी में ना रोहित जी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चंद्रदेव आपके चले जाएंगे पांचवें घर में, और छठवें घर का मालिक पांचवें घर में आ जाएगा, ये मैं बोलना चाहता था। और यहाँ पर छठवें घर का जो मालिक है, ये अपने से 12वां अगर बैठ जाए तो यहाँ पर लॉसेस देता है उस घर से रिलेटेड, यानी रोग ऋण शत्रु की तरफ से आपको थोड़ी तकलीफ होगी। और स्पेशली इस समय पे इमोशनल, मून एक इमोशनल प्लैनेट है, तो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, अपने लव्ड वन से, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देने की कोशिश करेगा। लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं। आपकी अंतरात्मा में, है ना, थोड़ा सा इशू आ सकता है इस समय पर। क्रिएटिविटी वाइज आप बहुत डल फील कर सकते हैं। लेकिन स्पेक्युलेटिव गेन वगैरह, लॉटरी, जुआ खेलना, लॉटरी खेलना या कैसीनो वसीनो में जाना, ये समय पे आपको बहुत अवॉइड करना चाहिए। आपको बिल्कुल कोई स्पेक्युलेटिव काम नहीं करना चाहिए ये समय में। बेसिकली वीकेंड में एकदम शांत रहकर सिर्फ मंत्र चैंटिंग करें, ओम गण गणपते नमः, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस समय पे। सबसे बेस्ट टाइम बिगिनिंग ऑफ द वीक है। एंड ऑफ द वीक में आके आपको थोड़ा सा केयरफुल, सतर्क रहने की जरूरत है। कोई लोन ना ले, कोई डिस्प्यूट ना करे, किसी को जबरदस्ती फोन करके झगड़ा ना करे, कुछ कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं है। वेरी केयरफुल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीक हम मिलेंगे। एक और बात आप मुझे बताएंगे अगले हफ्ते कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि छठवें घर का मालिक जब 12वें में अपने से 12वां जाता है तो पांचवा घर एग्जैक्टली अपर इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इन्फेक्शन देता है। सो आप केयरफुल रहना कि आपको कोई पेट के अंदर तकलीफ ना आ जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Pisces ascendant. When we talk about Pisces ascendant, Moon is in the second house, and second house is the house of wealth, and Moon and Mars combination is wealth only. Simple wealth is Moon and Mars. Here you can expect some kind of absolute wealth coming to your life. In the Mars video also I said that Mars going into the second house will get you some wealth, and Moon here is promising that wealth or the way to get the wealth. So wealth is coming, but on the other hand, because it is a very aggressive planet, Mars, speech wise you have to be controlling yourself so that you are careful. On the other hand, Moon also entering the third house here on 5th of June is where it is going to be getting exalted. The 5th house lord, 11th from itself, exalted means again wealth through communication. Some kind of communication comes to you that you have got wealth, you have got money. Speculative wealth, speculative gains is also seen. So very good time to do short-term speculative gains, some kind of short-term speculative gains. From short distance journey, some gain is going to be seen. From communication, from education, some gain is going to be seen. So very positive time for all the Pisces ascendant people.
Then moon is entering into the ninth, into the fourth house. The fourth house is where moon is going to be 12th from itself. That means a little bit of dispute from mothers, or some kind of expenses on your home, on your house, on your vehicles. Something will come suddenly you'll say, oh man, this was not supposed to come, this has come now, which will create a little bit of impact on your pocket. Suddenly some expenses through children, for children's education, for your higher education will come, which will say, oh my god, I never expected this to come. So this is what is going might happen during this week. So take a note of it. Beginning of the week very very awesome. End of the week little bit of weekend is little bit of challenging and little bit more expense here in this week. Okay, but otherwise very nice time. अगर हम बात करेंगे मीन लगन की, तो मीन लगन में देखेंगे चंद्र एरीज में, यानी आज चले जाएंगे मेष राशि में, आपके दूसरे घर में। दूसरा घर है पैसों का घर, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, फिक्स्ड एसेट्स का घर, यानी मेरे पास कितना पैसा है मेरे बैंक अकाउंट में, ये सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस को स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, पैसा ही पैसा आएगा। पैसा आएगा तो सही, पैसा तो 11वें घर से आता है, 5वें घर से आता है, 9वें घर से आता है, लेकिन सेकंड हाउस में आता है पैसा। अब रोकना कैसे है इसको, वो पैसा देखो कैसे रोकेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा धन का लाभ आपको होने वाला है, और होना ही है, क्योंकि ये प्रॉमिस है ना। अगर ऐसा होता, अगर ये महालक्ष्मी योग नहीं बनाते तो फिर इसको क्यों हम रिसर्च में डालते हैं, ये है ही महालक्ष्मी योग। तो आपको पैसे का कोई बेनिफिट होना ही होना है। अपनी फैमिली के अंदर भी आपको सुख मिलना है, लेकिन स्पीच पर कंट्रोल करिए। मार्स एग्रेसिव प्लैनेट है, आपको कहीं उल्टा सीधा ना बुलवा दे, जिसकी वजह से आपको ईगो हर्ट या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा कम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। फिर चंद्र चले जाएंगे आपके तीसरे घर में। तीसरे घर में जाकर ये बनाएंगे यहाँ पर एक ऐसी युति, पहले तो अमावस में आ जाएंगे, उसके बाद चंद्र और बृहस्पति बनाएंगे बुध गज केसरी योग, साथ में शुक्र देव भी वहीं बैठे जो इस घर के मालिक है, यहाँ पर उच्च के भी हो जाएंगे। तो चंद्रदेव आपको आपको स्पेक्युलेटिव गेन, अचानक से कोई बड़े बड़े गेन्स, छोटी यात्राओं से गेन, छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे समय के लिए इंट्राडे में आपका कोई प्रॉफिट निकल के आ गया, इस समय इस तरह के काम आपको बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की एडवाइस लेके करें। आपकी दशा अंतरदशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो प्लानिटरी पोजीशन बन रहा है, लेकिन इसके अलावा दशा अंतरदशा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद चंद्र चले जाएंगे जेमिनाई में, यानी आपके चौथे घर में। अब 5वें घर का मालिक अपने से 12वां बैठ गया, यानी बच्चों से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, लव लाइफ। आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी या बॉयफ्रेंड बोलेगा मुझे आईफोन 14 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा क्या है जो होता है वो चाहिए, आपको खर्चा करना पड़ेगा इस समय पे। आपके जेब पर डेंट आने वाला है। अपने घर के अंदर अगर कोई तरह की एडजस्टमेंट करनी है, जैसे आपको एडजस्टमेंट करनी है, कोई रिपेयर करवाना है, या आपकी गाड़ी में अचानक से कोई खर्चा आ गया, ये सब आपको इस समय पे देखने को मिलेगा। तो वीकेंड आप खर्चे कर रहे हो भाई, आपके कार्ड से चुक 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 स्वाइप हो रहे हैं, ये आप देख पाओगे। ओवरऑल ये पूरा वीक बहुत अच्छा है। बिगिनिंग ऑफ द वीक तो बेस्ट है, और इसके बाद एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा खर्चा है जिसमें आपको मेंटेन करना है, और आपको थोड़ा और खर्चा होता है तो आदमी के दिल में दर्द होता ही है ना। तो आप हिमेश रेशमिया का गाना है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तू हम हो जाए, ऐसा कोई गाना सुनना चाहिए आपको इस समय पे, जिससे आपको थोड़ी शांति मिले। पर अदरवाइज बहुत अच्छा समय है ये। बिगिनिंग ऑफ द वीक में जो पैसा आ रहा है इसको चुपचाप गोल्ड में कन्वर्ट कर दो, देखना ये कभी नहीं निकलेगा। सो जरूर अच्छा अच्छा न्यूज है। ऑल द बेस्ट। जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगले हफ्ते भी आप ये वीडियो देख सके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू रोहित जी। Thank you, Akashji, for the video in both the languages, Hindi and English. This is very difficult job to just turn your tracks from Hindi to English and then again explain everything in the queue. Thank you very much. Thanks to all the family members, because only because of your love and demand, Akashji is doing this thing. Double time, double efforts, double energy, Hindi and English both. So keep subscribing, keep sharing, and those who want appointment from Akashji, details on the screen. You can send details on the WhatsApp number anytime, and team will give you the date and time for the video consultation. Till then, Jai Shri Ram, Jai जय Hanuman, Jai हनुमान, Bajrang जय माता दी, Bali, जय माता, ओम Jai नमः शिवाय। Shri.